Unacademy. Let's crack it. So my name is Kushag. I am currently working as a software engineer at Inference. Inference is a startup from USA, and just a week back, I just got a full time offer from here. So I was basically an intern, 6 months intern over here, and then I have joined them as a full time software engineer. Now, also, I have gained a lot of knowledge about programming during my college days. So I've been sharing all of these knowledge with you guys, and it's been really great. And whatever knowledge I have, gathered, like during my CPC days, during my competitive programming days, during my interview days, whatever knowledge about whatever things I have gained during my college days, I just want people to have that particular knowledge so that whatever mistakes I made should be transferred to you so that you don't make those mistakes. And whatever things that was my power, then I can also share it with you guys. ठीक है, that is something else. और बस इतना ही है. बाकी तो I have also worked as some problem setter interns in my college days. So those who of you are in second or third year, I used to do some kind of problem setting. So problem setting I was doing for some startups wherein you might not have heard about the companies, but these companies take a lot of tests for interviews, right? For these they come to college and they take the test. So all of these platforms, they require problem setting and stuff like Hacker Earth, HackerRank. इन सब के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स दिए वगैरह, तो उसके लिए भी काफ़ी लोग करते हैं. यू क्रिएट DSA प्रॉब्लम्स एंड यू गेट पेड फॉर देम. तो ये सब चीज़ें होती है यार, ठीक है. और बाकी चलो क्वेश्चंस पे आते हैं. 2-3 क्वेश्चन शायद तुम लोग ने भेजे ही है. और यार हाँ, I do have a Telegram group which I am using. So in the Telegram group, I always post updates about my classes. So what I'll do is I'll just share the Telegram group link so that whoever is not over here will just get. Let me just run just a minute. Where is the group? Okay. Might get 2 or 3 people who are not over here. I'll just get back to your question, Ankit. Just a minute. And also, I'll just share my profile link of this Unacademy so that you don't miss all these classes. Cool. This is the Telegram link which I have shared, and I'm also sharing my profile link. A lot of new people are coming again and again, so won't take the introduction again, guys. Sorry. So this is just my profile link and my Telegram group link in which I update, post updates about my classes. And today's class, as everyone knows, that it is the Ask Me Anything session. So before we start off with today's session, I would like to tell you, each and every one of you, whoever is new over here, that I have been taking classes since the last 3 weeks, all the free classes. Okay. So before I was taking some plus classes, and I wanted to take some free classes because a lot of my new friends were over here. So I started off with free classes, like the special classes over here, and I wanted to even give you a sense of like what we teach in special classes and what we do in plus classes. So all in all, like I started off with special classes and I was taking arrays, then I took linked list, and then I took stacks. I started off with stacks. So just a couple of days in stacks, and then we'll be taking off stacks again into the problem solving classes. So we'll be moving to problem solving classes. So these things works like this, and all the classes are at 8:30 p.m. Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Okay, 5 days a week. Saturday, Sunday is off, and sometimes I take it, but generally it is off. So it's my rest day. So okay. So let's see some questions. Taking questions from the very first one who has taken. किसी ने पूछा था क्या अंकित से पहले क्वेश्चन? किसी, हाँ यार, ये मत सोचना कि इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछो जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, ठीक है. But what I do is I always prefer talking in English because it improves my conversation skills as well as yours, because whenever you will be taking your interview, mostly it will be in English, right? So try to get these conversation skills, because if you know DSA, if you know all the skills in your technical background, but if you are not good at conversing whatever you are trying to do, then it's just a waste. That also is required to get a good thing. एक्चुअली सर अभी बहुत कम टाइम है और कॉलेज में कंपनी आने लगी है. अब क्या बेनिफिशियल होगा इंटर्न के लिए, और इंटर्न नहीं लगी तो प्रॉब्लम होगी? नहीं, देखो,
पहली बात तो इंटर्न नहीं लगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा, उसका तो शॉर्ट आंसर, ठीक है। इंटर्न नहीं लगी तो ऐसे सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिलीव मी आई वुड ऑलवेज रिकमेंड यू टू फाइंड एन इंटर्न। प्रॉब्लम कुछ नहीं होएगी, तुम्हें कंपनीज कोई भी जज नहीं करेगी फाइनल टाइम पे। whenever company arrives they don't even see your resume if you have done any interns or not, but yes, if you have done any interns and you have extra knowledge then you will definitely be having a plus point, ठीक है। तो एक मैं रेकमेंड तो पक्का करूंगा कि इंटर्न वगैरह कर लो, कुछ छोटी मोटी कर लो। दो फायदे हैं, देखो मैं अपनी लैंग्वेज समझाता हूँ यार, कि सीवी बड़ा करना है, भरा हुआ सीवी सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तुम्हें मेरा सीवी चाहिए, मेरे से मेरा रिज्यूमे मांग लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा रिज्यूमे कैसा दिखता है। तो भरा हुआ रिज्यूमे सबको अच्छा लगता है, ठीक है। तुम लोग को भी अच्छा लगता है, रिक्रूटर को भी अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली इफ यू हैव सम वर्क एक्सपीरियंस एंड डू write it in your CV, it actually makes a lot of sense and adds value to your CV, right? So ऐसा कर लेना। और दूसरी चीज है यार, इंटर्न ढूंढना अगर कॉलेज में आ रही तो वेल एंड गुड, ट्राई टू ऑफ तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट बहुत इजी होता है, ठीक है। द कंपटीशन इज comparatively low, and secondly if you are good at things then you will be able to take any on campus jobs, ठीक है। ऑफ कैंपस में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि राउंड्स ऑफ इंटरव्यू इज वेरी लार्ज, like numerically it is more than what you have the number of rounds in the college. Then secondly also like there are a lot of people competing for one single job, right? So that is why off campus is a bit harder. ओके, तो एक्चुअली सर अभी बहुत टाइम है और कॉलेज में कंपनी आने लगी है, तो यार बस डीएसआर एल्गो में लग जाओ अंकित, ठीक है। कंपनी जितनी भी आ रही है सारी कंपनीज भरो, इंटरव्यू दो, ठीक है, किसी ना किसी में तो लगेगी। और बाकी लिंक्डइन वगैरह पे भी जो लोग सोच रहे हैं कि कैसे करना है, तो लिंक्डइन वगैरह में कोई छोटे से ही स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि पहली इंटर्न करोगे सेकंड थर्ड ईयर में तो अच्छे से स्टार्ट हो जाएगी। स्टाइपेंड लो 5,000 10,000 15,000 जितने की मिल पा रही है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं मिल पाएगी तुम्हें 50,000 वाली भी, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह अभी भी सेकंड थर्ड ईयर को देती है, लेकिन ठीक है। डोंट एम हाई, एम फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स एंड एडिंग समथिंग इनटू योर एक्सपीरियंस, that will actually reflect when you are actually competing for the final thing, right? But yes, if you are good enough, if you are an intermediate coder, then definitely go on careers page of different top product companies like you have Adobe for students, you have Google career for, there is a program called STEM in Google, ठीक है। तो वो सेकंड थर्ड ईयर के लिए होता है, मुझे अपने टाइम पे आइडिया नहीं था, ठीक है। और देन यू हैव माइक्रोसॉफ्ट का भी स्टूडेंट प्रोग्राम कुछ होता है, तो उसमें तुम्हें कोचिंग देते हैं। इनफैक्ट फेसबुक हैज अ गुड ऑप्शन, ये तो मुझे अभी पता चला है जब मैं पास आउट हो गया कॉलेज से, कि फेसबुक ऑल्सो हैज, फेसबुक लंदन में वो 18 महीने का पूरा वो कराते हैं कि तुम्हें सिखाएगी भी प्लस तुम्हें स्टाइपेंड भी देगी, तो ये भी बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत सारे इंटरमीडिएट कोडर्स, आई एम अगेन सेइंग दैट इंटरमीडिएट कोडर्स हु आर गुड एट थिंग्स, अच्छे अच्छे टीयर 3 कॉलेज टीयर 2 कॉलेज से फेसबुक वगैरह लंदन वगैरह पहुंच जाता है, और सबको अच्छा लगेगा यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि अगर मैं किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो ऐसी चीजों को देखते रहा करो। whenever you find an opportunity, don't go to LinkedIn and find some referral and be very respectful on LinkedIn. लोग रेफरल वगैरह आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि क्यों देते हैं रेफरल? अच्छा तुम्हें लगता है कि लोग रेफरल वगैरह क्यों दे देते हैं? तो यार रेफरल वगैरह इसलिए दे देते हैं क्योंकि देखो, आज के दिन तुम मुझसे बोलोगे कि सर मुझे इन्फ्लुएंस में रेफरल चाहिए आपका, आई विल अप्लाई फॉर योर रेफरल इफ आई नो यू, and if you send me your CV and I think that you are a good fit for my company, then definitely I'll give you a referral. And why would I give you a referral? Just because I will get something out of it. If you get converted into a full-time employee, then I will get some benefits. That is the whole logic. And every company gives some benefits to the people who is referring someone else. इसलिए होता है ये सब। अच्छा खासा पैसा होता है, मतलब यार कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 50-60 हज़ार रुपए से स्टार्ट होता है शायद। जैसे फ्रेशर को लग पाए तो 50,000 रुपए, हर कंपनी का अलग अलग है। देन अगर 2-3 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा लग रहा है तुम्हारे रेफरल से, तो इट्स लाइक 1.5 लाख रुपीज तुम्हें जो मिलते हैं। तो ऐसी चीजें होती है, बस सिर्फ रेफर करने के देखो पैसे मिलते हैं, तो कुछ काम वाम नहीं करना है। तो और बड़ी कंपनीज में ये सब चीजें और बढ़ जाती है। अब ये जाकर किसी को गाना नहीं है कि यार ये भी चीज होती है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो वेल एंड गुड, ये लेकिन होता है। सो एवरी कंपनी डज दैट, and so this is actually good for the people who is referring and also for you. So that is why have a very great connections on LinkedIn. ऐसा नहीं है कि बस रेफर ही सीधे बात मांग लिया कि रेफर दे दो मुझे भीख की तरह, ऐसे कोई नहीं देगा। थोड़ी बात करो,
थोड़ा सा इनसे इंटरेक्शन बनाओ कि क्या काम होता है, एंड आई एम अ गुड कैंडिडेट, ऐसा कुछ बात करो और फिर तुम्हें मिल जाता है आराम से। मैंने बहुत रेफर लिया है, मैं थर्ड टीयर 3 कॉलेज से था, मैं कौन सा आईआईटी वगैरह से था। As a tier 3 we have to do both CP and development. देखो, it's your choice. If you are doing CP as well as development, it's well and good. I personally did not do much of development. I was more into machine learning. I also have 2 research papers into machine learning, so I was more into machine learning and research. ठीक है, तो मैंने CP बहुत अच्छे से करी, और जब मैंने CP थोड़ी बहुत अच्छे से कर ली तो मैंने उसके बाद मतलब फिर मेरा मन हुआ कि मतलब आई ऑलवेज लव टू एक्सप्लोर अदर एरियाज। ऐसा नहीं कि मैंने 5 स्टार कोडर बना और मैं छोड़ दी, ठीक है यार, अब एक अचीव इतना मैं केपेबल हो गया कि मुझे पता है कि इट्स सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है, तो इट्स नॉट नीडेड नाउ। तो अब क्या है कि यार मेरे लिए जरूरत, मतलब मैंने ये नहीं बोला कि जरूरत नहीं था, ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस करता गया, लेकिन मैंने उतना नहीं कि लग कर करता तो डेफिनेटली यार अच्छा कुछ कर ही लेता, और अच्छी रैंकिंग्स और रेटिंग्स पहुंच जाती मेरी, ठीक है। तो लेकिन मैं मशीन लर्निंग में थोड़ा घुस गया था, मुझे मशीन लर्निंग थोड़ा बहुत अच्छा लगने लग गया, तो इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल चॉइस, ठीक है। तो मेरे फिर रिसर्च पेपर लिखे उसमें, मेरा रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है, ठीक है, इट्स 2 ऑफ माय रिसर्चेस आर पब्लिश्ड करेंटली, और इसलिए ये भी चीज कर सकते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, एवरीथिंग जस्ट रिफ्लेक्ट्स व्हाट यू आर doing CP, doing development, whatever you know Linux, well and good. You know web development, well and good. You know about server, you know about backend, well and good. Whatever you are applying, that reflects in your CV. Whatever you are doing, ठीक है। तो इट्स नॉट लाइक कि तुम CV करोगे, तुमने लिखा कि कोड शेफ पे तुम 5 स्टार हो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये बस एक मिथ है कि तुमने भाई लिख दिया कि आई एम अ पर्पल एट कोड फोर्सेस एंड आई एम 5 स्टार एट कोड शेफ, सो यू विल गेट द जॉब। नो, this is a wrong thing that you guys have in your mind. Nobody judges you on that. People judge you on a good CV. First of all, resume अगर अच्छा है तुम्हारा कि तुम्हारा क्या क्या है, ठीक है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा कि यार तुम 2 स्टार कोडर हो तो तुम्हें अच्छा वो मिले। These things add up to your resume. Your resume is your first thing that any recruiter sees, ठीक है। Second is how you do in your interviews. That's it. There is nothing else like कोई बोल दे कि भाई तुम हो तो बड़े तगड़े कोडर, तुम भले 7 स्टार कोडर हो, एंड देन यू डू नॉट परफॉर्म इन द इंटरव्यूज, देन यू आर रिजेक्टेड। दैट इज द होल reality. When did you start CP? I started off CP approximately after my first year. कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मैंने शायद कोडशेफ पे पहला सबमिशन मेरे ख्याल से सेकंड सेमेस्टर के बाद ही मारा होगा, तो सेकंड ईयर और सेकंड थर्ड ईयर में मेनली करी है, सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर में मेनली करी है, लेकिन अच्छे से करी थी पढ़ते पढ़ते, तो ठीक ठाक सी होगी थी। उसके बाद देन साइड बाय साइड आई वाज आल्सो डूइंग मशीन लर्निंग एंड स्टफ, सो ये मेरा था। Okay, how to manage time and how to stay motivated when I am not able to solve lead code problems. See, manage time is something that you need to ask yourself. ठीक है, that is not a question that I can answer for you. ठीक है, it's all about how you can be a productive in a day. So first of all, like if I tell you about my schedule, then what I personally do is like I have an office. I wake up at 8:30. I sleep late, so I wake up at 8:30 a.m. I do a bit of exercise, not much, a bit of exercise. So that I was reading a book, so I got to know about all of these productivity skills. मैंने भी कॉलेज में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया, मैं खुद भी बहुत मोटा हूँ यार, तो स्टिफ बॉडी नहीं होनी चाहिए। तो I do some exercise, 8:30 पे उठता हूँ, ब्रश करके I do some exercise. Then I always have an app for any to-do list. So I always have a to-do list. I always create my to-do list somewhere in the night. So I take those 30 minutes so that I have a to-do list. And if you want, I can show you my to-do list, right? और क्या ही दिखाना है, सबकी अलग अलग होती है टू डू लिस्ट में मैं सारे काम कर लेता हूँ यार, मुझे क्या करना है, मुझे क्या पढ़ना है, मुझे कब से क्या ऑफिस में करना है, मुझे कल क्या देना है ऑफिस में, मुझे क्या क्या बनाना है कल ऑफिस में। इफ आई एम creating some kind of a package today, if I am creating some kind of a working on some module today, then I will complete that particular module. और in that time मैं कुछ extra नहीं करूँगा, क्योंकि यार Facebook browsing, Instagram browsing, WhatsApp, YouTube takes a lot of time. You go to YouTube, you start off with just a 5-minute video, then you get all the recommendations in the right column, and then you click on those recommendations, then you go again and again. This is just endless. So I just
figured out this extension on Google Chrome, which is Unhook YouTube. ठीक है? So what it does is it blocks your YouTube content. Whatever you search on YouTube, जैसे मुझे आज के दिन कुछ पढ़ना है, जैसे I need to work upon पाइथन में कुछ मुझे पढ़ना है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं पाइथन में, ठीक है? आई वांट टू लर्न अबाउट मोर अबाउट एक्सेप्शंस एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई कैन यूज इन पाइथन एक्सेप्शंस, सो हाउ कैन आई रीच एक्सेप्शन इन पाइथन. सो सबसे अच्छा देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यूट्यूब पे जाकर पढ़ूंगा इस सब चीजों के बारे में. इफ आई वांट टू नो मोर अबाउट फ्लास्क इन पाइथन, देन आई वुड गो ऑन रेफर समथिंग ऑन द यूट्यूब. आजकल चीजें अवेलेबल है, ठीक है, गूगल पे अवेलेबल है. बट व्हेन यू सर्च ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कुछ ना कुछ ऐसा पॉप हो जाता है जैसे तुम इधर उधर भटक जाते हो. तो ये सब कुछ नहीं करना है, यही तुम, इसी वजह से तुम अपना मैनेज कर सकते हो टाइम. अगर तुमने सोच रखा है कि भाई आज मैं 6 से 10 पढ़ाई करूंगा, सॉरी 10 से 6 पढ़ाई करूंगा, दैट मेक्स इट लाइक 8 आवर्स, उसके बीच में मैं लंच वगैरह करूंगा, नो डाउट, तो मैं करूंगा, ठीक है. दैट इज हाउ यू स्टे मोटिवेटेड. मोटिवेट कर, देखो एक ही है कि मोटिवेट कैसे रहना है. मेरे साथ तुम बात करते हो, मैं तुम्हें बताते रहता हूँ, मैं तुम्हें पुश करता रहता हूँ कि भाई काम करो 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 करो. मोटिवेशन तुम इसी से क्राइटेरिया लगा लो कि तुम जितना अच्छा पढ़ाई करोगे तुम्हें इतनी अच्छी कंपनी मिलेगी, और ये कड़वा सच है. इट्स नॉट लाइक देयर इज सम luck going on. Luck only favors when you actually prepare for it. I'm not saying that I wasn't rejected in some of the companies. If I was rejected in 10, I selected in 4, right? ऐसा होता है हमेशा. तो लेकिन वो 14 कंपनी के लिए तुम्हें अपना प्रोफाइल बहुत बढ़िया बिल्डअप करना पड़ेगा, अपने आप को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा. तो वही मोटिवेशन रखो कि यार कल के दिन 3-4 हजार में गुजारा नहीं है, 5 हजार में गुजारा नहीं है, 5 हजार की जॉब लगी, 10 हजार की जॉब लगी, कोई गुजारा नहीं है, ठीक है. दुनिया बहुत एडवांस है, ठीक है. तुम 10,000 रुपए आजकल सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कमाते हैं, और इंजीनियर्स को भी मिलते हैं. दैट इज द रियलिटी. इंजीनियर्स इवन अर्न 10,000 5,000 रुपीज. तो दैट इज हाउ यू हैव टू बी मोटिवेटेड एंड कीप सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है, व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लर्न, सबसे सही सीधी बात है, जस्ट लर्न अबाउट वन थिंग एंड स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. यू विल एंजॉय इट. सबसे बढ़िया चीज. एंड मैनेज टाइम, दैट जस्ट डिपेंड्स अपॉन यू. यू कैन नॉट आस्क दिस क्वेश्चन टू एनीवन एल्स, ठीक है. आज के दिन मैं तुमसे पूछूं कि भाई मैं क्या करूं पूरे दिन में, तो तुम मुझे नहीं बता पाओगे. तुम्हारा डेली रूटीन अलग है मेरे से. यू हैव टू फिगर आउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन योर ओन. बी मोर क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट. बी मोर इंडिपेंडेंट अबाउट ऑल ऑफ दीज डिसीजंस. बिकॉज अगर तुमने ये सीख लिया ना, तो यू आर ऑलरेडी अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है. और मैं शायद लेट हूँ, मैं आजकल सीख रहा हूँ. मैं कॉलेज में बहुत ऐसा था कि भाई हाँ चलो हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता था कि ठीक है कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे. तो ठीक है, ऐसा नहीं होता है. मैं थोड़ा लेट सीख रहा हूँ, लेकिन यू कैन आल्सो जस्ट लर्न दिस, ठीक है. आई एम एन एमटेक 2021 पास आउट एंड प्लेस्ड इन एलटीआई, बट आई नीड अ हायर पैकेज. देन कैन आई मूव विद इन 1 year ऑफ जॉइनिंग एलटीआई? सी, यू should never just focus on package, ठीक है. क्योंकि क्या होता है कि mostly people jump from one company to another just because of they get a rise, ठीक है. So if you are in a LTI, just try to, whatever company you are, I'm not saying that you were here, try to focus in these days, because you are a fresher like I am also a fresher. These days just try to focus learning new things. Whatever knowledge you learn will give you an opportunity for new job. If you just start your new job like this, that I want a better package, then you are done. Seriously saying. So if I started off with Inference and I'm saying that will I be able to make it into Google, I will definitely make it into Google if I love my current job and I do a bit of things. But I don't want to be into Google right now, because first of all I need to gain a lot of knowledge. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई गूगल एम्प्लॉय मेरे से ज्यादा नॉलेज कमा रहा होगा, ऐसा नहीं है. मुझे ऐसा पता है क्योंकि मैं एक अच्छे स्टार्टअप में हूँ, मुझे एक अच्छी नॉलेज मिल रही है. पढ़ते रहो पूरे समय पे. डेफिनेटली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल. यू आर सेइंग दैट यू आर इन एलटीआई, पीपल आर in Infosys, and after 3 years they have switched into Amazon and Google. Cool. So even not in Amazon India, I'm saying that Amazon US and London offices, ठीक है. I've seen people who have switched from service based companies to product based companies, and you would find all of these interviews on YouTube as well. बहुत सारे लोग शेयर करते हैं अपनी चीजें, ठीक है. ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन को क्लियर कर ले रहा हूँ तुम्हारे, तो एक थम्स अप बोल देना, और वरना आगे की और दे देना, ठीक है. सो आई थिंक आई एम गोइंग अ बिट स्लो. लेट्स सी. So how much time should I give to CP? So as I am also doing development, and sir, one more question in research paper, mandatory to add in your CV? No, it is not mandatory. It just depends. Again, I said that how much time you should give, that depends upon you, how much you can give. That's not a question that I can answer for you. That is just your life preference. You want to give 2 hours in a day, give 2 hours. You want to give 5 hours a day, give 5 hours. But yes,
try to give as much as possible, because this should be your main focus area of these days, right? So whenever interviews are approaching, give as much time as you can, because this is the only thing that you will be asked in your interview. If you are not prepared, everything needs a preparation. आज के दिन मुझसे भी कोई बोले कि तुम्हारा कल डीएस एल्गो राउंड है, इवन आई टेक अ लॉट ऑफ अनअकैडमी क्लासेस, आई नो डीएस एल्गो प्रीटी वेल. ठीक है, प्रीटी वेल मतलब ये है कि हो सकता हो आज के दिन ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ दे जो मेरे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो एक फ्लो टूट चुका है जो मैं प्रिपरेशन कर रहा था. तो यस, if I have an interview scheduled after 20 days, I will definitely prepare for my interviews साइड बाय साइड. ठीक है, तो ये करना पड़ेगा तुम्हें. तो इतना टाइम दो कि जिसमें सब कुछ कवर हो जाए. ठीक है, डेवलपमेंट करो, दैट इज रियली गुड. ठीक है, do CP for fun, not just like that I will be cracking interview companies or stuff. ठीक है, do CP for fun. You will definitely crack companies if you are good at problem solving, not just DS and algo. If you can solve a problem for some person with a good time complexity, you are done. You are good. ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो CP नहीं करते थे and they are getting offers from a top project companies. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं. तो देखो, मेरी लाइफ से सीखो ना. मैंने क्या बोला कि मैंने मशीन लर्निंग सीखनी थी तो मैंने सीखी, मैंने कॉम्पिटिटिव सीखनी थी तो मैंने इसको टाइम दिया. ठीक है, तो इट्स योर ओन चॉइस दैट व्हाट यू वांट टू डू. डोंट गो विद द फ्लो. if you are going with the flow, then you are just a herd in a herd of sheep होते हैं, उसमें एक sheep हो तुम. ठीक है, in a herd you are just one sheep if you are just going with the flow. If you go to the YouTube, you will find, क्योंकि अभी हम इंडिया में रहते हैं. इंडिया में क्या है कि एक चीज को इतना बढ़ा दिया जाता है कि लोग बिल्कुल पीछे भागने लग जाते हैं कि हाँ भाई करना है, यही करना है, यही मेरा गेटवे है. So competitive programming is not a gateway for getting a top rated company. Problem solving is a gateway. ठीक है, तो अगर हम गूगल की बात करें तो if you are good at problem solving, then you are good to go. ठीक है, उसके लिए तुम्हें चीजें पता होनी चाहिए. ये नहीं कि तुमने, अगर तुम्हें ट्राई आज के दिन पता है, अगर तुम्हें आज स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन पता है, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन यू आर गुड टू गो. इफ यू कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट इन अ क्वेश्चन, देन यू आर गुड टू गो. इट इज नॉट लाइक दैट if you have solved 50 questions in try, that only you can go into a product-based company. Nobody asks you like how many problems you have solved. As far as like you can apply the logic, you are good to go. ठीक है, but yes, how will you progress in solving, progress in this thing? By solving questions. So this thing is interlinked. If you are good at grasping, then you are okay, then you solve 10 problems only. If you are not good at grasping things, solve 20 problems. It just depends upon how you take it. I hope that is clear to each and every one of you. ठीक है, and sir, please give some research paper tips. So यार ये कैसे research paper की tips दूं? We have you have professors in your college. ठीक है, that would be a better way. You should ask them like what is your topic. So first of all, you should have a lot of interest in doing some kind of a research. ठीक है, तो research paper की कोई tips नहीं होती है यार. तुम professor ही सब कुछ करवा देता है. We have professors in college, then you do some kind of a research that is a new thing that is not there in the previous researches. Then what you do is you apply to some conference or journals, and then it may happen that your paper will be rejected or selected. So a lot of times it takes like it will be rejected by 8 or 10 conferences, then it gets selected in one of the conferences. तो ठीक है, हो जाता है publish वगैरह. तो लेकिन तुम्हें अगर पूरा सच में है कि तुम्हें रिसर्च पेपर में काम करना है तो बिल्कुल करो. ठीक है, इसके लिए लेकिन तुम मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, सच बता रहा हूँ अतुल कि यार मैं बहुत छोटा हूँ कि अभी तुम्हें इतनी नॉलेज दे सकूँ कि how to write a good research paper and how to get things published. So I'm not that PhD level guy right now, but yes, from my own experience, I would say that talk to your professors about it. They know it very well, because in my case also, I have written a research paper. One of my co-authors were like in both the research paper, one of my co-authors was one of the teachers of the college. और सबके कॉलेज में होता है, हर अच्छे टीचर होते हैं, उनसे बॉन्डिंग बनाओ, उनसे पूछो कि आजकल किस पे वो काम कर रहे हैं और क्या काम है. तुम्हें इंटरेस्ट आएगा, देन यू आल्सो वर्क विद देम, एंड देन यू कैन डेफिनेटली राइट योर ओन रिसर्च पेपर एंड पब्लिश इट. सर, हाउ मच इंफॉर्मेशन ऑफ DSA विल बी रिक्वायर्ड टू क्रैक एनी इंटरव्यू? Very generic question again, that how much information is required. Then again, I would say that have a decent information about arrays.
linked list, stacks, queues, then you have recursion, then you have DP, then you have binary trees, and then you have a lot of questions, to be very honest, are asked from one linked list, second arrays, third binary trees, four DP, and five graphs. A lot of questions. And if you like, only a few companies go to tries and stuff. Like tries is very easy actually. Like ऐसा कोई मुश्किल नहीं होता है कि तुम वो हो जाए, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है. तो ये 5-6 टॉपिक जो होते हैं वो बहुत मेन होते हैं. इसके अंदर तुम्हारी अच्छी कमांड है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है. देन इफ यू से कि यार कुछ इंटरवल ट्री वगैरह है, तो ये सब डीएसए के अंदर आता है. डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम वो भी है, लेकिन मतलब बहुत कम पूछा जाता है. ठीक है. मैं ये भी नहीं कह रहा कि मतलब पूछे नहीं जाता, कोई कोई कंपनी पूछ भी लेती है. रेड ब्लैक ट्री हो गया, इंटरवल ट्री हो गया, मुझे भी याद नहीं होगा. सेगमेंट ट्री हो गया. इनफैक्ट सेगमेंट ट्री इज समथिंग दैट is rarely asked. Like you can apply the same concept in some kind of an interview, but yes, like if you know it, then it is really great. But at least these things you should know. At least this much information. Or this is for cracking any type of interview. What is the most fascinating thing you have found in the field of CS? Everything is fascinating over here. That is a good question again. That it is good that you are asking what is the thing which is fascinating, because first of all, the subject is very vast. We have a lot of things over here, and we have in particular computer science, we have researches part, we have development part, we have back end development, front end development. We have variety of things. One can be an iOS developer, one can be an Android developer, one can be a Python developer, one can be a developer on Ruby on Rails, one can know, even you know one thing and you can do wonders. A lot of people are saying that people were doing great in blockchain, people are doing great in machine learning, people are doing great in whatever field they are working in. कितने सारे लोग फ्रीलांसर बन जाते हैं, एक ही चीज को कमांड करके उसी पे पीछे लगे रहते हैं और काम करते रहते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट यू नो दैट द फील्ड इज वेरी वास्ट फॉर मी. ठीक है. आज के दिन मुझे कोई चीज नहीं पढ़नी होगी, इट इज एक्चुअली वेरी ग्रेट. क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, वेरी न्यू नॉलेज. ठीक है. स्टॉक मार्केट, very new knowledge. I love investing into stock market, so I learned about it during my these days, COVID days. So I also try to read about mathematical concepts that is required, how people predict all of these things, statistics वगैरह क्या होती है. तो बहुत डीप है यार, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस मिलाकर बहुत डीप घुस जाता है. तो दैट इज व्हाट द फैसिनेटिंग थिंग अबाउट CS थिंग. तो इसलिए मुझे पसंद है यार. ठीक है, कि इसमें कितना फैसिनेशन है. हो सकता है यार और भी लाइन में होता हो, लेकिन मुझे उसके बारे में आइडिया नहीं है. इफ आई से मैकेनिकल, तो मैकेनिकल में मुझे उतना आइडिया नहीं है, इलेक्ट्रिकल में मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे अपने सब्जेक्ट के बाद में आइडिया है कि वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर हियर राइट फ्रॉम what I have discussed. ठीक है. So I hope that clears your doubt. And again, a very good question, that what fascinates me. So that is the only, like, the variety and the deeper the things go when you study it. So if you can say that you know Python, then I'm pretty much sure that you do not know Python. If you say you do data structure algorithm, I'm pretty much sure that there would be someone who is better than you. So there is no one who is better at just one thing. ठीक है. एक्सेप्शंस होते हैं. जब तुम बोलोगे गेनेडी क्रोटोकेविच तो तुम्हारा है, रिक्टो वगैरह है, वो बिल्कुल ग्रेट है डीएसए में. ठीक है, अच्छी बात है, वो ग्रेट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर कंपटीशन जीत जाता है. कोई एक बंदा हमेशा नहीं जीतता. देयर इज स्टिल अ कंपटीशन. सो दिस इज हाउ द कंपटीशन इज ग्रोइंग. ठीक है. तो learn about a lot of things. I'm not saying that just focus on one thing. You have a lot of new things to learn. Even I am learning these days. But yes, पहले कंपनी अपनी में निकाल लो, उसके लिए थोड़ी बहुत डीएसए चाहिए होती है. लेकिन हाँ, CS is a really vast field. On-campus companies pay more for support roles rather than development. Should I go for those? I want ST. Can I switch internally? No. On-campus companies pay more for support. I don't think that this was the case during my on-campus interviews, but if it is the case in your, first of all, let me just clear you that will you be able to switch internally? That internal switch is actually difficult if you are hired for a support role. They would be, if a company is hiring for you for the support role, then they would be giving you the support role only. It would be like a difficult situation for you to internally switch to the SD role, right? And I'm saying it because I've had these cases with one of my friends.
ठीक है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि मतलब वो लोग ये सोचते हैं कि इंटरनली बहुत अच्छे से स्विच हो जाएगा। लोग ये भी सोचते हैं कि इसके साथ कि इफ आई ज्वाइन Amazon टुडे, सो Amazon बैंगलोर आई ज्वाइन कर लिया, देन आई विल बी एबल टू मूव टू Amazon गुड़गांव। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्टेड होता है कि कर ही नहीं सकते हैं, कि रिक्वेस्ट करोगे तो नहीं होगा, हो जाता है, लेकिन इट्स अ बिट, it's not hassle free, I would say. It's not hassle free, like you just go and said no, I want to do SD part. No, if you are hired for support, then you should stay at least 1 year or 1.5 years over there, then you become an SD. That, so I would say that if you are getting an opportunity as an SD, then go for that. ठीक है, दैट इज जस्ट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर तुम्हें सपोर्ट में ज्यादा पैसा मिल रहा है और तुम्हें पैसे ही चाहिए है, देन डेफिनेटली गो फॉर दैट, क्योंकि सबके डिसीजंस अलग अलग होते हैं। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं कि दे जस्ट वांट मनी, whatever things they are doing, and they think that ऐसा हो जाएगा। नो डाउट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उस कंपनी में क्या वो है, क्या कैसे होएगा, कैसे नहीं होगा। इट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। और मेरे पर्सनल मतलब मेरे पर्सनली हिसाब से तो मुझे लगता है कि मुश्किल होता है थोड़ा। ठीक है, एज फार एज आई नो कि इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू स्विच इंटरनली। ठीक है, what mistake you have done and suggest us to avoid those? टफ क्वेश्चन। तो एक तो मिस्टेक यही है यार कि बहुत व्हेन यू आर इन अ कॉलेज यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग, यू कैन नॉट फोकस ऑन वन थिंग। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास मेरे दिमाग में भी चलते थे व्हेन आई वाज इन कॉलेज कि यार किसी कंपनी में प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, कि मुझे कोई कंपनी ले जाएगी नहीं ले जाएगी। ठीक है, कि मैं डेवलपमेंट करूँ, मैं यही सब करूँ। तो सबसे बड़ा तो यही मिस्टेक है कि ये सब क्वेश्चंस अपने दिमाग से निकाल दो। सच में the only mistake that I would say that and you need to avoid is that take out all of these questions. You go to YouTube, you'll find a lot of things. 5 mistakes I did while preparing for my interviews. 5 mistakes I did while not getting a placement from Google. 5 mistakes I did not do all of these things. Secondly यार, मुझे क्योंकि मैं मतलब अपने पे घर वालों का फर्स्ट चाइल्ड था, तो मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि यार क्या क्या चीजें एक्चुअली होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है यार। एक तो होता है जैसे जीसॉक के बारे में मुझे थर्ड ईयर के बाद पता चला था कि जीसॉक भी नाम की कोई चीज होती है। ठीक है, तो लोग यार वो सब होते हैं। ओपन सोर्स में भी अगर तुम कर रहे हो तो ओपन सोर्स में कोलैबोरेशन करते हैं लोग, उससे भी काफी अच्छी अच्छी रेज्यूमे बिल्डअप होता है। तो वो मुझे नहीं पता था। ठीक है, क्योंकि ओपन सोर्स भी कर रहे हो तो यार वो भी एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, और सेकेंडली यार मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी कि अच्छी कंपनीज में इंटर्नशिप कैसे चपानी होती है। तो अब मुझे पता है कि यार अच्छी कंपनीज में बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, लाइक गूगल हैज अ स्टेप प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट हैज कोडेस फॉर गर्ल्स। ठीक है, अडोबी हैज सम वुमेन इन टेक फॉर गर्ल्स। ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसके पीछे तुम भाग सकते हो और तुम अपना एम बना सकते हो दैट यू कैन गेट इनटू दीस प्रोग्राम्स। ऑल ऑफ दीज आई डिड नॉट नो अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, और सेकेंडली सबसे बेस्ट चीज जो मैं कहूंगा कि डोंट ask the same questions again and again कि यार CS ये अच्छा है, वो अच्छा है। ठीक है, focus on one area, try to learn problem solving as much as you can. By problem solving I mean that to solve problems you definitely need some kind of a data structure and algorithm. Try to learn all of these things as much as you can. There is no limit to all of these things. If you are a pro coder, then try to go for higher levels. If you are not, then definitely go for wherever you are. If you are a beginner, then learn beginner. So I'm in the end of my third year and now at tier 3 college. How much time do I have before I'll have to sit on company? Is there any specific window in which a company hires freshers, or does it vary from company to company? So see, Sriram, if your college allows for a 6-month intern during your college semester, then it is well and good, and you would find there are two things basically. One is on campus and one is off campus. So one is that people come, okay, you might not get to know which question I'm taking, so I'll just share my screen. So I'm taking Sriram's question right now. Sriram says that he's in third year, and how much time do I have before I'll have to sit for an interview in a good company? So if you are now, and I'm from a tier 3 college. So I think you are doing a 4-year course at your college, and it's not a 5-year course. And companies will start from these days. So in my college, it depends upon, like, you would be knowing more about your colleges, that if your colleges allow for 6-month intern, then companies will start from these days only.
स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ द फोर्थ ईयर, ठीक है, उससे कंपनी तुम्हारी स्टार्ट हो जाएगी आना। उसके बाद तुम 6 मंथ इंटर्न निकालते हो, उसके बाद तुम्हें आराम से पीपीओ वगैरह उसमें मिल जाता है। तो तुम्हारे पास टाइम, मैं बोलूंगा कि यू हैव अ लेस टाइम, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज। एंड व्हाट आई मीन बाय प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यूज इज ट्राई टू लर्न वन ऑफ द टॉपिक्स, वेदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम अनअकैडमी, वेदर यू आर डूइंग इट फ्रॉम YouTube, but I would suggest that if you are a plus member, since you are a plus member, Shriram, so try to focus on one of the batches, Shriram. Try to learn as much as you can. Try to solve problems as much as you can. लीड कोड पे जाओ, एक टॉपिक पढ़ा, जैसे मैंने लिंक लिस्ट पढ़ा है, लिंक लिस्ट पे ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करो। The more you practice for your interviews, the more you will get better. That is the whole logic. And yes, companies will start now. And is there any specific window in which a company hires freshers? Then yes, the window is like this only. If a company is hiring for 2021 graduates or 2022 graduates, then this is the window. तो हर कंपनी का अलग अलग होता है विंडो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि पूरे साल ही कंपनी हायर कर रही होती है। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट द डेट्स व्हेन द कंपनी हायर्स। तो वो डेट्स का आइडिया रखो, ठीक है। अभी तुम 2022 पास आउट हो और एक साल बाद तुम्हारा प्लेसमेंट होगा, तो तुम देखते रहो कि कौन सी कंपनी कब हायर कर रही है। गूगल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2021 इनटेक वाज फ्रॉम अराउंड कितना था मेरे ख्याल से यार, अगस्त से चल रहा है, अगस्त से चल रहा था। एंड देन इट्स स्टिल गोइंग ऑन दो, ठीक है, काफी अभी भी है, लेकिन अब उनकी ओपनिंग्स ओवर हो गई है। तो ये सब देखते रहो कि कब हायर कर रही है। फेसबुक बहुत लोग हायर करते हैं। फेसबुक की भी आई थी बीच में अराउंड नवंबर टाइम की, फेसबुक में ओपनिंग्स निकली थी फ्रेशर के लिए। तो हर एक कंपनी का यार श्रीराम अलग होता है, लेकिन पूरे साल में बहुत अलग अलग टाइम पे होता है, ठीक है। तो ये तुम आइडिया तभी लगा सकते हो जब तुम्हें पता होगी वो कंपनी पिछली बार कब आई थी। तो मैं ऐसे इंटरव्यू कि इस चीज के बारे में काफी अच्छी कंपनीज में, अगर मैं तुम्हें बता दूं यार, मैंने एक जगह लिख रखी थी जिस कंपनीज में मुझे लगता था कि अच्छी है, तो मैंने उसके बारे में एक बार लिस्ट ले रखी थी, पता नहीं यार मैंने कहाँ छोड़ दी। अच्छा ठीक है, तो सम गुड कंपनीज व्हिच आई वांट टू से इज गूगल, Amazon, Microsoft, Coordination, DE Shaw, Goldman Sachs, Shopee is from Singapore, Media.net, Zeta, then Traveloka and Postman. All of these are companies that pay you well and a learning opportunity is really great. Then there is one called DBS Bank, one is Morgan Stanley. Then you also have some. Whoa. ठीक है? Is that clear? Best way to master recursion: have practice questions but not able to apply or solve a new problem, cause of which not able to go to the TP install. तो what I can do is I can create another thing on recursion. तो उससे क्या होगा यार कि तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे करना। तो अगली एक क्लास वास में बना लूंगा रिकर्जन वगैरह पे, एक अच्छी क्लासेस ले लेंगे रिकर्जन पे, तो तुमको पता चल जाएगा रिकर्जन कैसे लिखवाना है, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक। सर अगस्त फर्स्ट वीक में कंपनीज आएंगी इंटर्नशिप के लिए, अभी क्या स्ट्रेटेजी यूज करें? August work fee, so you have just 1 in July. ठीक है, एक महीना है। The strategy you should use is that try to InterviewBit is a site, okay? तो InterviewBit. So try to solve all the problems over here. So what I did was I tried to solve a lot of problems on InterviewBit. तो इधर से काफी देखो, स्टार्टिंग से बिल्कुल स्टार्ट करो, एंड देन you know it's काफी सही है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, arrays, maths, then you go to binary search, string, bit manipulation, 2 pointer, सब कुछ करते रहे। देखो, if I talk about myself, then you can see that I have solved almost all problem over here, ठीक है। कुछ होएगी, कुछ नहीं होगी, लेकिन all of these will give you an edge because a lot of companies ask interview problems. They might go here and there, but once you have the concept clear, solving all the interview problems, then you have a lot of grasp over all of the interview problems. I would say that 1 month is a really good time. Even if you solve 5 or 6 problems, then you will be able to complete all of these things. At least complete up till level 7, level 8. ग्राफ वगैरह कंप्लीट कर लोगे तो थोड़ा सही रहेगा। ग्राफ देखो मैंने भी ज्यादा नहीं किया क्या, हाँ मैंने भी देखो इतना ज्यादा नहीं किया है, ठीक है। मैंने वो ब्रिजेस वाली चीजें नहीं करी थी लास्ट में, क्योंकि मुझे लगता था कि वो सब चीजें नहीं आती है कंपनीज में यूजुअली, और नहीं भी आती है, तो मैंने वो सब चीजें छोड़ दी थी। The things which are really important for me was to know BFS, DFS, and you know some algorithms like prims and stuff. तो prims वगैरह भी ज्यादा नहीं आता है, लेकिन shortest path algorithm 2-4 फ्लॉइड वॉर्शल वगैरह पढ़ लेना तो वो काम की जाती है। तो एक स्ट्रेटेजी होती है यार कि मतलब हर चीज नहीं पढ़नी है,
तो ये सब मुझे पता था कि ग्राफ से इतना नहीं था। बाइनरी ट्री बहुत आता है यार, बाइनरी ट्री, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क बाइनरी ट्री, सो गो टू ट्री ट्री स्ट्रक्चर and try to do as many problems as you can. If you can see, there are a huge number of problems in this particular set. Even on LeetCode you will find a huge number of problems. ठीक है, बाइनरी ट्री is a really favorite topic of interviewers. तो एक बार ही तुम ये कर लेना, महीने भर में हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है. Can I switch between? No, you are not able. You are not. You won't be able to switch between languages in your interview if you have said that you will be taking up. You know, अरे ये क्या हो गया? ये on नहीं है क्या मेरा? If you said that you will be taking your interviews in C++, so you will be coding in C++. Cool. So, but yes, whatever language you will take, you will be able. You just have to write the function. You don't have to, take any input, take any output. You just have to, like you'd seen LeetCode, right? You just have to complete that particular function. So, ऐसे ही होता है. You have to complete that particular function. Try to dry run it. Try to, impress the interview that this would work and this would be an optimized approach. So that is what you have to do. Sir, please do section on the problem section on tries and problem solving. Okay, I will do some session on tries and problem solving. अच्छा, try and problem solving. ठीक है, कर लेगा. I am a high school student preparing for IOI by doing CP. CP full time. Do you think it's smart to do this over something like part-time JEE CP or school CP? Apologize for not being interview related. It's okay. So Nikhil, it's good that you are a high school student and doing CP and preparing for IOI. That is really great. But yes, because we are Indians again, so we are again Indians, so people जनरली पेरेंट्स का यही होता है कि यार जेई करना है, आईआईटी में अच्छी रैंक लानी है, 99 परसेंटाइल लाना है, तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा. ठीक है, तो साइड बाय साइड इफ यू आर डूइंग सीपी, इट इज रियली ग्रेट. देयर आर सम कॉलेजेस दैट प्योरली टेक्स ऑन योर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्किल. जैसे एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद में अभी कोर्स चालू हुआ था जिसमें यू ओनली गेट एडमिशन जिसमें अगर तुम्हें एल्गोरिथम्स वगैरह अच्छी आती है. अच्छी बात है दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईओए एंड स्टफ. It will actually help you. Whichever college you go, mark my words that it won't even matter that even if you are going to IIT or NIT or any tier 3 college, you will make a good impact wherever you are. If you have a dream of studying, CS subject. Project नहीं है यार, देखो फिर वही वाली बात आ जाती है कि if you do not have the project, then you should have something in your CV. Like you have some kind of a research, you have some kind of project. तो सीवी में लिखोगे क्या यार? तो 60 साल की इंजीनियरिंग करी है और कुछ किया ही नहीं, तो फिर दैट इज एक्चुअली अ नेगेटिव थिंग फॉर द इंटरव्यूअर. इंटरव्यूअर कुछ तो पूछेगा ना यार कि एक सीवी खाली थोड़ा सा दे देखो ये यार मैंने इस कॉलेज से इंजीनियरिंग कर ली, इस कॉलेज से 12th कर लिया, इस स्कूल से 10th कर लिया, उसके बाद मुझे ये स्किल्स आती है, मान लो ये आता है, पाइथन आता है, वो आता है, लेकिन तुमने स्किल्स का करा क्या, कैसे सीखी ये स्किल्स? Yes, I would say. How should we prepare for those guess the output questions of C? Annoying. फिर के रिव्यूज रिज्यूमे में डाल सकते हैं? हाँ यार, बिल्कुल डाल सकते, क्यों नहीं डाल सकते. इफ यू आर अ फ्रीलांसर एंड यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ अ फ्रीलांसिंग थिंग, देन यू कैन डेफिनेटली अपडेट दोस थिंग्स इन द रिज्यूमे. अभी तो तुम डाल ही सकते हो यार, ये सब चीजें भी तुम्हारा पार्ट है. पर्टिकुलरली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 10th. अभी तो तुम 10th में ना, अभी क्या कर रहे होगे यार? अभी तो तुम अच्छे से सीपी करो, तुम्हारे पास बहुत टाइम है. अच्छा, अच्छी बात है यार, बिल्कुल डाल सकते हो अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है. लेकिन अगर तुमने देखो 10th में कर ली फ्रीलांसिंग, जब तक तुम कॉलेज में पहुंचोगे, देन whenever you will be creating your resume, you will be having more than what you have done in your class 10. So don't worry about creating a resume right now. If you are a early student, then I would definitely suggest that be very focused on your competitive programming. You will do wonders. गेस द आउटपुट फॉर सी यार, वो थोड़े अनोइंग तो होते हैं. ठीक है, तो उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकते. उसके लिए यही है कि जितना ये 2-4 लैंग्वेजेस होती, 2-4 जगह जहाँ मिलते हैं वहां पर देख लो कि यार कैसे होते हैं. तो इसके लिए तो सच में मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि कैसे पढ़ना है.
तो डीएसए के लिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि कैसे पढ़ना है, कि क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, जो मैं बता भी रहा हूँ यार कि कैसे करना है, जो भी पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अरे ये थोड़ी ना है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, ठीक है। एक मिनट, एक एक क्वेश्चन लेते हैं। अमन खान इज आस्किंग, सो आउटपुट क्वेश्चंस ऑफ सी, देन like what be very smart. so कभी कभार क्या होता है यार, आउटपुट क्वेश्चंस आते हैं तो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस के साथ आते हैं, तो ये करना मत, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या कहता, हमने मैं थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ कि जो थोड़े आउटपुट वाले प्रोग्राम है ना, उसको कंपाइलर पे रन करके देख लो अगर नहीं समझ पा रहे हो तो क्योंकि क्या होता है, हैकरैंक वगैरह में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन भी है, साथ में आउटपुट वाले क्वेश्चन भी है, तो कंपाइलर तो अवेलेबल ही है ना तुम्हारे साथ, भले टेस्ट चल रहा है लेकिन कंपाइलर तो है ही। तो ट्राई टू डू दोस थिंग्स, बी स्मार्ट, ठीक है। ट्राई टू डू दोस थिंग्स, यू आर गिवन अ कंपाइलर, देन यू कैन डू दिस। बट यस, इफ इट जस्ट MCQ questions, then you have to be very good about all of these C questions. So try to learn this. There is one site called Sen Foundry. Sen Foundry में काफी MCQs वगैरह मिलते हैं जो C पे ही रिलेटेड होते हैं, तो उससे काम चल जाता है यार। तो अगर तुम जाओगे तो सैन फाउंड्री सी क्वेश्चंस देखो, ऐसे होते हैं वो, सैन फाउंड्री सी MCQ, तो इस पे जाओगे, देन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीस थिंग्स, देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ कि मतलब किस पे है। अच्छा, ये एड ब्लॉकर ऑन है तो देख लेना यार, ठीक है। सैन फाउंड्री में जाओगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड उसके अंदर क्वेश्चंस, तो एक बार तुम इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, यू विल मैनेज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक दिस। सर आई गेट मच demotivated, I think you are saying Spotch problem set. Difficult level 3, it will take 1.5 to 2 hours to solve a single problem. Still not able to come up with the approach. कोई बात नहीं यार संयम, देखो धीमे धीमे ही तुम बढ़ोगे. You will solve some problems from Swatch and then you will move on to different areas. Try to do some code for this problem, ठीक है. और demotivate ना हो, हर चीज को एक लर्निंग मानो, that even if you invested 2 hours there, then you try to learn new thing, ठीक है. और टाइम लगेगा, ऐसी बात नहीं है कि तुमने एक साल पहले स्टार्ट की और तुम बिल्कुल ही चैंपियन हो गए, नहीं। सो पीपल लाइक एरिक्टो एंड केनेडी, दे हैव बीन डूइंग प्रोग्रामिंग सिंस दे वर इन सिंस दे वर लाइक जस्ट लाइक 8 years old. सो आज के दिन पे वो टॉप बिल्कुल वो प्रोग्रामर बन पाया मस्त वाले, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है यार, टाइम लगेगा, तो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, ट्राई टू लर्न ऑल दिस। ऐसा कोई नहीं है कि यू आर जस्ट बॉर्न विद ऑल द स्किल्स एंड यू विल बी मेकिंग वंडर्स. So Sanyam, यार टाइम तो लगेगा, you have to give time, but yes, try to solve problems, don't get demotivated, try to learn things. You only get demotivated with the things which you do not want to do. So if you have this type of attitude, then you will definitely get demotivated. मैं भी तो हूँ यार, मैं आज के दिन ऑफिस भी करता हूँ, मैं फिर अकेडमी भी करता हूँ, ठीक है। फिर मैं तुम लोग को सबको बताता भी हूँ, पढ़ाता भी, क्यों करता हूँ मैं ये सब भाई? मैं भी छोड़ दूँ यार, मुझे क्या वो मिलता है? तो यार सीधी बात है, डिमोटिवेशन क्या है? मैं सोचता हूँ कि तुम लोग से इंटरेक्ट करूंगा, आई माइट गेट टू नो सम थिंग्स विच इज न्यू, आई माइट गेट टू नो सम थिंग्स विच यू डू नॉट नो, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आई माइट गेट टू नो सम थिंग्स विच आई डू नॉट नो, तुम मुझे बता दोगे। कोई ऐसा क्वेश्चन तुम लोग ने मुझसे पूछ लिया जो मुझे भी नहीं आता है, आई विल सर्च अबाउट इट, ठीक है। या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो अच्छा लगता है मुझे, आई विल शेयर इट विद यू। सो दिस इज द होल मोटिवेशन दैट आई गेट, ठीक है। मैं टीचिंग, मुझे पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज जस्ट अबाउट हाउ यू गेट मोटिवेशन. So you will definitely get demotivation if you do not love it, if you are frustrated, ठीक है. Don't get frustrated while solving problems. Try to look all the problems like a new opportunity to learn something. I hope that clears your doubts. So be very focused, ठीक है यार. अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, सीखूंगा कुछ नया कि हाँ अरे इसको तो ऐसे कर सकते थे, ठीक है, सीख गए, अगली बार नहीं करेंगे ऐसी गलती, कुछ आया तो ठीक है. मास्टर करने के लिए बस उसी तरीके के 2-4 प्रॉब्लम कर लो, समझ रहे हो ना? Does that clear your doubt? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए कौन सा पार्ट फोकस करना है यार? अरे यार ऐसा कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है. देखो कोई कंपनी तुम्हें ये थोड़ी ना बताएगी कि आज मैं तुमसे मैं तुमसे ट्रीज के क्वेश्चन पूछूंगा या मैं तुमसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे ही क्वेश्चन पूछूंगा. तो व्हाटएवर आई सेड दैट इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग टर्म थिंग. इट्स नॉट लाइक यू जस्ट प्रिपेयर फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इन 5 days. तो ऐसा तो नहीं है. 5 days में तभी कर पाओगे जब तुम्हारे पास पूरी पूरी नॉलेज है पहले से. तो देखो तुम्हें एक चीज शेयर करता हूँ कि अगर कोई जो बहुतों का मेन डाउट होता है, तो सबसे
frequently asked things and what should you actually do. CP algorithm is a very good website. For it actually is good for learning new things as well as applying those concepts. So if you want to learn binary exponentiation, go over here. You will get an article over here. If you get this article, it's well and good. If you do not get this article, try to search it on Google, you will find it. But yes, if you are an Academy Plus, then we'll definitely help you, and we already have a lot of things over here. तो ये सब चीजें हैं यार, तो ये सब चीजें पढ़ो, इम्प्लीमेंटेशन मिलेगी तुम्हें, ठीक है, कैसे करना है, सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सब कुछ मिलेगा. Then you will also get a problems to solve in this. तो ऐसे भी कर सकते हो तुम कि यार कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. तो इट्स अ गुड एक्सरसाइज, इट्स अ गुड गुड वेबसाइट टू लर्न. ठीक है, ऐसे ही तुम्हें यार मैं तुम्हें बता दूं यार तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए. यू विल डेफिनेटली शुड नो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन. ठीक है, तुम्हें जीसीडी पता होनी है, यूक्लिड एल्गोरिथम पता होनी चाहिए. एक्सटेंडेड पता हो नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं है. लीनियर डेवलपमेंट कोई दिक्कत नहीं है. यू शुड डेफिनेटली नो व्हाट आर फिबोनाची सीरीज एंड फिबोनाची नंबर्स एंड व्हाट ऑल थिंग्स यू कैन डू. सी ऑफ एरेथमेटिक मस्ट नो. With linear time complexity, it's okay. If you know sum of arithmetic, then it is good. Then it's okay. नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं. Number of divisors, sum of divisors बिल्कुल पता होना चाहिए. Then modular inverse बिल्कुल पता होना चाहिए. CRT नहीं पता कोई दिक्कत नहीं. Factorial model भी बिल्कुल पता होना चाहिए. Primitive root नहीं कोई दिक्कत नहीं है. ये सब चीजें कोई फालतू की दिक्कत नहीं है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ग्रे कोड कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये तो मुझे भी नहीं पता यार. सब मार्क्स ऑफ बिट मार्क्स ठीक है, ये नहीं पूछेगा कोई. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फास्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म मुझे भी नहीं आता, आज भी नहीं आता है. जो बात सच है, रियलिटी है, मुझे आज भी नहीं आता है. पढ़ने की कोशिश की थी लेकिन नहीं समझ आया. ठीक है, नहीं पता होना चाहिए. ऑपरेशंस और पॉलिनोमियल सीरीज, ये एक अच्छा टॉपिक है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना. ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है बस इसलिए बोल रहा हूँ. लेकिन नोबडी विल आस्क यू. ठीक है, देन डेटा स्ट्रक्चर्स में आते हैं. दैट व्हाट यू नीड टू नो अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स. ठीक है, स्क्रीन तो विजिबल है ना? हाँ, ठीक है. देन अगेन मैंने स्टैक वगैरह सब पता होना चाहिए. स्पार्स टेबल इट्स ओके, नहीं आता तो. डीएसयू पता होना चाहिए. कुछ अच्छी कंपनीज में डीएसयू वगैरह हो जाता है. फेनविक ट्री कुछ अच्छी कंपनीज, अगेन आई एम सेइंग कुछ अच्छी कंपनीज. स्क्वायर डिकम्पोजिशन very few limited companies, it's just a concept, but most of the questions you will be able to solve it using Fenwick tree or segment tree. तो ये चीज नहीं पता नहीं, ये चीज छोड़ भी सकते हो. ठीक है, segment tree it's a good to know if you are applying aiming for some very great companies, and in fact this is actually very interesting thing. Square root tree छोड़ो, सब कुछ छोड़ो. ठीक है, divide and conquer पता होना चाहिए. ठीक है, डीपीए ऑप्टिमाइजेशन है. ठीक है, तो ये एडवांस बिल्कुल. डिलीटिंग फ्रॉम अ डेटा स्ट्रक्चर्स इन ओएफटी एंड लॉग जो भी है, ये इंटरवल ट्री, रेड ब्लैक ट्री वगैरह शायद होगा इसके अंदर, तो ये नहीं बताना चाहिए. तो ये अलग क्वेश्चन अच्छा है. फाइंडिंग द लार्जेस्ट जीरो सब मैट्रिक्स, ये पता होना चाहिए. देन स्ट्रिंग्स में अगर आते हैं तो स्ट्रिंग्स में कोई एक एल्गोरिथम, इधर केएमपी और रेबिनकार्प और एहो क्रॉसिंग हटा दो, ये किसी को आती है, मेनली यूएस में बहुत फेमस रहती है, लेकिन जरूरी नहीं है. इट्स अ स्ट्रिंग एल्गोरिथम. वन ऑफ द स्ट्रिंग एल्गोरिथम यू शुड नो एटलीस्ट वन ऑफ दीस, ईदर केएमपी और रेबिनकार्प, और देयर इज वन मोर जेड एल्गोरिथम. तो इनमें से कोई एक चीज पता नहीं, शायद जेड नहीं दे रखा है यहाँ पर. अगर दे रखा है तो वो भी पढ़ लेना. ठीक है, स्ट्रिंग हैशिंग पता कर लेना, अच्छी चीज होती है. तो इसमें पॉलिनोमियल रोलिंग हैश फंक्शन यूज होता है, तो वो काफी सही चीज है. देखो, पॉलिनोमियल रोलिंग हैश फंक्शन, ये अच्छी चीज होती है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए पता होनी चाहिए. ठीक है, देन अगेन आई सेड सफिक्स एरे मैंने पढ़ाया भी है और पता भी होना चाहिए. ठीक है, सफिक्स ट्री वगैरह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. लिनियर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है. रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर पता है तो अच्छी बात है. ठीक है, डिटरमिनेंट वगैरह पता है तो अच्छी बात है, लेकिन दिस इज जस्ट रिलेटेड टू मैट्रिसेस. मतलब मैथ्स अगर अच्छी है तो तुम्हें ये सब चीजें पता ही होगी. डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, इनवर्स कैसे निकलता है मैट्रिक्स का, ये सब चीजें थोड़ी बहुत पता है तो अच्छी बात है. कॉम्बिनेटोरिक्स यू शुड नो अ बिट. फाइंडिंग पावर ऑफ फैक्टोरियल डिवाइजर, ये सब चीजें पक्का पता होनी चाहिए. ये पता होना चाहिए. इंक्लूजन एक्सक्लूजन, जनरेटिंग ऑल की कॉम्बिनेशंस बिल्कुल पता होना चाहिए. तो प्लेसिंग बिशप्स ऑन अ चेस बोर्ड बिल्कुल यस. ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स में टर्नरी सर्च पता होना चाहिए थोड़ा बहुत. बाइनरी सर्च आता है, इट्स गुड, बट यस, टर्नरी सर्च भी अगर थोड़ा बहुत पता है तो इट्स ओके. बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए. न्यूटन्स मेथड होता है एक फाइंडिंग रूट्स का, तो वो अच्छा मेथड होता है. वो अप्रोक्सीमेट रूट्स बताता है किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताता है, लेकिन जरूरी नहीं है. इट्स जस्ट मैथ्स. ठीक है, तो ऐसी ही चीजें है यार. ज्योमेट्री अगर पता है अच्छे से नहीं की आती है तो इंटरव्यू में चलेगा काम. ये तो पूरा टॉपिक ही छोड़ दो. मतलब ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल छोड़ दो, मतलब जस्ट सेइंग दैट
लाइक इंटरसेक्शन ऑफ सेगमेंट्स वगैरह शायद ही कोई पूछ ले, लेकिन मुश्किल ही है, ठीक है। ग्राफ्स में आते हैं, बीएफएस मस्ट डू, डीएफएस मस्ट डू, ठीक है। देन फाइंडिंग ब्रिजेस okay to do, might be asked in some of the good companies. Then again, both of these good companies, ये दोनों चीजें हटा दो। Dijkstra must know, Dijkstron स्पार्स हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेलमन फोर्ड याद होनी चाहिए, 01 बीएफएस याद होना चाहिए। फ्लॉयड वॉर्शल मस्ट नो, ये दिस इज मस्ट नो, दिस इज मस्ट नो, ठीक है। तो इसमें तो देख लेना किससे इंप्लीमेंट करना है। तो ये प्रायोरिटी क्यू से इंप्लीमेंट होता है, ये डिसजॉइंट सेट यूनियन से इंप्लीमेंट होता है। दिस वन इज अ बिट इजियर, तो ये वाला भी कर सकते हो, ठीक है। कोई एक चीज पता होनी चाहिए। ये सब बाकी जो इतने बात पता है, ये मुझे भी नहीं पता आज तक, ठीक है। हो सकता है कभी मेरा मन हुआ तो मैं पढ़ूंगा जरूर। एलसीए बिल्कुल पता होना चाहिए। एलसीए विद बाइनरी लिफ्टिंग, गुड टू नो इफ यू आर एमिंग फॉर सम गुड कंपनीज, ओके। देन अगेन, अब यार बहुत हो गया, ठीक है। गेम थ्योरी वगैरह में ये हटाओ, पूरा हटा दो मिसलेनियस में। जोसेफस प्रॉब्लम इज अ गुड प्रॉब्लम, इट इज आस्क्ड इन गूगल वे मोर इयर्स बैक, बट ओके, ठीक है। फ्लोज वगैरह कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। बाइपर्टाइट ग्राफ, ओके, दिस कैन बी आस्क्ड बाइपर्टाइट ग्राफ पूछा गया था, अमेज़न वगैरह में पूछ लेते हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मस्ट, ठीक है। एज कनेक्टिविटी, हाँ ये तो बहुत ही कॉमन चीज है, तो ये पता होनी चाहिए। टोपोलॉजिकल और ये दोनों मस्ट हुआ, बाकी सब मैंने बता दिया, ठीक है। साइकिल बच के क्या, साइकिल मैंने पढ़ा अभी 1 मिनट से। देन यस, साइकिल्स, चेकिंग अ साइकिल इन अ ग्राफ, तो फाइंडिंग एन एडिटर, बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ठीक है। सो आई होप दैट क्लियर्स ऑल ऑफ योर डाउट्स।